6 months of survival advantage. When this chemotherapy given in the form of oral metronidazole, it gives 7.5 months survival. With targeted therapy, 10 months survival advantage, and this is the era of immunotherapy where we can offer. So this EGFR monoclonal antibody in recurrent and metastatic head and neck cancer, even with chemotherapy, give the survival advantage of 10.1 months. In 25% cases, of thyroid present as a lymph node swelling. So I think, as Sir has told, I think without raised calcitonin will be review the slides again. If you have any doubt, you can get repeated. Like FNSC can be repeated in those cases because it's very unlikely that medullary without raised calcitonin. At least maybe it may be borderline if tumor is very small. But if nodes are there, then that will be very high. When you do post-auricular incisions, large post-auricular incisions, and very fine nerves like posterior nerves and other membranes. So, what is the incidence of post-operative neuralgia in your cases? So, any neck dissection previously we used to cut all greater auricular nerve in all patients, but now I preserve in most of the patients. So that is the difference, because now I can see from here that nerve is going in the lobule. So in the retroauricular approach we go over the greater auricular nerve. So generally we preserve that nerve. So sensation will be better than normal surgery. Even with now open surgery as well, I try to preserve greater auricular nerve. I don't cut greater auricular nerve now. both the branch. Was also there. Thank you to the press members. One request to all our members: Twitter is a very powerful medium, and I always insist after each session, each scientific session, IMA-JSR @IMA-JSR is our official Twitter handle. Not full form; it is @IMA-JSR. You have just got to download Twitter in your smartphones and just search for @IMA-JSR. And please follow our Twitter handle. We will have strength in the Twitter. We can tweet to SSP, DC, Chief Minister, Health Minister. It's a very powerful medium. So we have one good ammunition in the form of Twitter if all of us start following our handle. Just for information. नमस्कार फ्रेंड्स, आज हेल्थ परिचर्चा में, स्वास्थ्य परिचर्चा में एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक ऐसे डॉक्टर कि जो इनोवेशन और न्यू प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, डॉक्टर राजीव शरण जी, जो HOD हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, हेड एंड नेक कैंसर एंड थायराइड सर्जरी, HCG इको कैंसर सेंटर, जो कि न्यू टाउन कोलकाता में है। सर, आपने बहुत उच्च मेडिकल कॉलेज से डिग्री हासिल की है, एम्स हॉस्पिटल से इन्होंने MBBS किया। राजीव सर, सबसे पहले तो आपको मैं स्वागत करता हूं इंडिया टीवी ऑनलाइन पर इस स्वास्थ्य परिचर्चा में। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप HOD हैं अपने विभाग के, और इसमें मेन है हेड एंड नेक कैंसर एंड थायराइड सर्जरी। तो इस विषय को लेकर के इंडिया में कितनी सजगता की आवश्यकता है और अभी क्या पोजीशन है हमारे पूरे भारतवर्ष का, क्योंकि आप एक अपने आप में बहुत ही ग्रेट सर्जन हैं और हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपसे बात करके हम अपने सारे दर्शकों तक आपकी बातों को पहुंचा सकें। हेड एंड नेक कैंसर इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है, स्पेशली मेल्स में जी। और ऑलमोस्ट 70 to 80% of all head and neck cancer
टोबैको यूज से होता है। सो अगर टोबैको यूज बंद करते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक 70 to 80% ऑफ हेड एंड नेक कैंसर ऐसे ही कम होता है। सो इंडिया में टोबैको यूज बहुत कॉमन है, स्पेशली पान, गुटखा, टोबैको, खैनी, सिगरेट्स, बीड़ी, और ये एरिया जो है बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी, ये हब है। तो ओरल कैंसर का हब है क्योंकि ये बहुत कॉमन कैंसर है यहाँ इस एरिया में। तो इसके लिए हमें लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि इसका जो पॉजिटिव फैक्टर है टोबैको, उसका यूज़ कम करने की ज़रूरत है। उसका एक्सेस अभी बहुत लाइक सबको मिल सकता है, कोई भी जाकर के हर पान दुकान पे या कोई भी ये शॉप पे इजीली पान गुटखा का वो पाउच मिल जाता है। तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, स्पेशली कॉलेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, उससे एटलीस्ट 501 किलोमीटर दायरे में वो चीज़ अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। सरकार को इस पे कड़े कदम उठाने की जरूरत है। जी सर, ये बेसिकली जो आपने जो रीजन बताया ईस्टर्न इंडिया का, वो पार्ट है कि जहाँ पर लोअर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि इम्यून सिस्टम या खाने पीने में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलना, या फिर इसका कोई वजह एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म होना, क्या ऐसा कुछ भी वजह हो सकता है क्या? इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी तो अच्छी होती है क्योंकि वो जो माहौल में रहते हैं उसमें सारा इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता मिलती है उनको, क्योंकि सब क्लिनिकल लेवल पे वो इन्फेक्शंस होते हैं, उससे एंटीबॉडी बनती है तो उसमें वो रेसिस्टेंस आता है जी। लेकिन जो हेड एंड नेक कैंसर की बात है वो मेनली टोबैको यूज से होता है, और मे भी कह सकते हैं कि लाइफ स्टाइल से होता है, जो कोई भी कैंसर हो सकता है जी। तो उसके लिए हमें जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं लाइक टोबैको यूज, अल्कोहल, वो सब को कम करना है, बंद करना है, और इसके साथ साथ अच्छी लाइफ स्टाइल रखना है कि खाना हमारा अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, हेल्दी डाइट होना चाहिए, फ्रूट्स का सेवन करें, वेजिटेबल्स का सेवन करें, इसके साथ साथ एक्टिविटी करनी भी ज़रूरी है। सो वॉकिंग करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, जब भी समय मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, वॉक करें, एक्टिविटी बढ़नी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़नी चाहिए। सो दीज ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जी। सर, इसमें थायराइड सर्जरी है जिसमें आपने आज कई एक ऐसी चीज़ों पे बात करी कि बड़ा ही ये बहुत ही, अब इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसमें काम कर लिया है, इसमें बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे सर्जरी हो सकती है। तो उसमें कोई नई चीज़ आई हो सर, जो सर्जरी आसान हो और जो भी पेशेंट आए, थायराइड के पेशेंट आए, वो आसानी से अपनी सर्जरी को करवा सकें और बेहतर हो सके? थायराइड कैंसर यंग जनरेशन में कॉमन होता है, और यंग जनरेशन कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे गर्दन में, हमारे नेक में कोई स्कार आए। तो उसके लिए अभी नए नए अप्रोच आ रहे हैं, जो इंडोस्कोप की मदद से और अभी रिसेंटली रोबोट की मदद से थायराइड की सर्जरी हो सकती है, जिसमें नेक में स्कार नहीं आता है। सो बहुत सारे अप्रोचेज हैं, कान के पीछे से कर सकते हैं, चेस्ट से कर सकते हैं, मुंह के थ्रू कर सकते हैं। तो बहुत सारे अप्रोचेज, नए नए अप्रोचेज रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिससे थायराइड सर्जरी कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी इंसिजन इन द नेक। सो पेशेंट को स्कार नहीं दिखता है तो लोगों को पता नहीं लगेगा कि हम उसकी सर्जरी हुई है। पेशेंट को जो ये भी कोई भी स्कार होता है तो उससे स्टिग्मा अटैच होता है। अगर नेक में है, थायराइड सर्जरी हुई है, तो स्कार रहेगा, कोई भी देख के बता सकता है कि अच्छा कोई सर्जरी हुई है। तो वो सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं नए टेक्निक के मदद से। लेकिन ये नई टेक्निक भी सबके लिए लागू नहीं होता है, उसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। ट्यूमर छोटा होना चाहिए, नॉर्मल बहुत ओबीज नहीं होना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम कंसीडर करते हैं बिफोर सेलेक्टिंग न्यूअर मेथड्स फॉर थायराइड सर्जरी। जी सर, एक आम आदमी के मन में बड़ा जहन में सवाल रहता है, जैसे आप लोग बात करते हैं टेक्निकल स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो ये कैंसर के जो स्टेजेस हैं वो सर क्या डिफाइन करते हैं जो हमारे आम आदमी समझ सके? स्टेज डिपेंड करता है कि ट्यूमर किस साइज का है डायग्नोसिस के समय, उसके और क्या क्या फैक्टर्स हैं।
whether that is restricted to the primary side और वो गर्दन में भी गया है, ग्लैंड्स लिम्फ नोड्स होते हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं, या बॉडी के किसी और पार्ट्स में गए हैं, तो उसके बेसिस पे स्टेज होते हैं जो स्टेज 1 to स्टेज 4 होते हैं। तो स्टेज 1 और 2 वो अर्ली स्टेज कैंसर होते हैं, स्टेज 3 4 एडवांस कैंसर होते हैं। तो डिपेंड करता है उसका ट्रीटमेंट किस स्टेज में है डिजीज और उसका प्रोग्नोसिस कैसा हो। तो स्टेज अर्ली स्टेज में हो सकता है सिंगल मॉड्यूलेटरी ट्रीटमेंट हो, सिर्फ सर्जरी से ठीक हो जाए या रेडिएशन से ठीक हो जाए, लेकिन एडवांस स्टेज में सर्जरी के साथ रेडिएशन और रेडिएशन और कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और उसका जो क्योर रेट होता है अर्ली स्टेज में मोर देन 70-80% चांसेस होते हैं 5 साल वो कंट्रोल रहे, लेकिन स्टेज 3-4 में वो चांसेस, स्टेज 3 में मे बी इट विल बी 70% एंड स्टेज 4 में हो सकता है वो 50 से 60% हो, और बहुत जब एडवांस हो तो हो सकता है कि वो आगे लाइफ 1 साल रहे या 1.5 साल रहे या 2 साल रहे। तो ये स्टेज डिफाइन करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है पेशेंट का और उसका प्रोग्नोसिस कैसा है, फ्यूचर में कैसा कंट्रोल रहेगा ट्यूमर, उसकी जानकारी मिलती है। सर, अगर आम आदमी को जब ये सब तरीके का डिजीज डेवलप हो जाए शरीर में, तो उसको क्या सिम्टम आते होंगे? क्या ऐसा लगता है कि प्रीवियस उसके पास कुछ सिम्टम्स बॉडी के कि जो उसको पता चल जाता होगा या आपसे मिलना चाहिए? इसमें तो मैंने जैसे पहले भी बताया है कि जैसे हेड एंड नेक कैंसर में मुंह में घाव हो सकता है, रेड पैचेज हो सकते हैं, वाइट पैचेज हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, गले में गांठ स्वेलिंग हो सकती है, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। आवाज़ में चेंज हो सकता है। ये कोई भी सिम्टम्स जब 3-4 सप्ताह से ज़्यादा परसिस्ट करता है तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। जी सर, अगर किसी को ये पता चल जाए कि हमें ऐसा हो गया है तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए आपसे मिलकर, और क्या क्या परहेज और क्या क्या बातें करनी चाहिए? उसे डॉक्टर कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट अगर लगता है कि ट्यूमर की संभावना है, पहले तो जो भी डॉक्टर हैं उनसे मिल सकते हैं, अगर उनसे सॉल्व नहीं होता है तो ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। तो प्रॉपर एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, बायोप्सी करने की ज़रूरत होगी जिससे वो कंफर्म हो सके कैंसर, ताकि फिर आगे का ट्रीटमेंट उससे ये हो सके। जी सर, तो एक सेकंड लास्ट नोट पे हम लोग हैं सर, कि अगर ऐसा पेशेंट्स हो जाए तो क्या इंडिया में या आप जैसे सर्जन के पास ये इलाज ऐसा है कि जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास एफोर्ड कर सकता है और उनको ये इलाज मिल सकता है? वो बहुत सारे सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट सेंटर्स हैं, ट्रस्ट का सेंटर्स हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, तो वो जिनकी जैसी फाइनेंशियल स्टेटस है उसके अनुसार जा सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इट विल बी टोटली फ्री, ट्रस्ट हॉस्पिटल में थोड़ा सा चार्ज होगा, कुछ हाफ चार्जेस होंगे, कॉरपोरेट हॉस्पिटल में पूरे फुल चार्जेस हैं। तो जिनका जैसा है वो हर जगह ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, तो जिनकी जैसी फाइनेंशियल स्टेटस है उसके अनुसार वो उस सेंटर पे जा सकते हैं और ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सर, बहुत सारे लोगों का सवाल सर है कि 5 लाख रुपए तक जो प्रधानमंत्री जी का जो योजना है, वो आरोग्य योजना जो है, क्या वो इसमें कवर करता है? उसमें सारे हॉस्पिटल्स में इसको ट्रीट किया जा सकता है? अब वो तो मैं सब नहीं बता सकता उसमें कि कितने हॉस्पिटल्स में कवर होता है, लेकिन सरकारी ट्रस्ट हॉस्पिटल्स और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वो कवर होते हैं। वो सब हॉस्पिटल्स की वो उसमें उसके साइट पे या उससे इंक्वायरी, हॉस्पिटल से इंक्वायरी करने पे ही आपको पता लग सकता है। जी सर, लास्ट में क्या पेशेंट्स को कहना चाहेंगे जिसको हो गया है, उन सब पेशेंट्स के लिए आपका क्या वर्ड्स होगा? कैंसर अगर अवेयर होते हैं तो कैंसर का डिटेक्शन अर्ली स्टेज में हो सकता है, उसमें उसका इलाज संभव है और आगे क्योर होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर कोई भी सिम्टम्स होता है तो उसको इग्नोर ना करें, डॉक्टर के पास जाएं और ट्राई करें कि वो उसका डायग्नोसिस जल्दी हो जाए और ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाए, तो उसमें आगे फ्यूचर में ट्यूमर कंट्रोल होने के चांसेस अच्छे रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर राजीव शरण सर ने बहुत सुंदर जानकारी दी, और मैं डिटेल बता दूंगा, सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कैंसर एक ऐसी डिजीज है जो अर्ली एज में आपने अर्ली स्टेज में पता कर लिया तो 100% ठीक होगा। निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर राजीव शरण जैसे लोग एक मिशन बनाया है कि कैंसर फ्री इंडिया करने के लिए। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।